हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स शेप ऑफ एन indifference curve. It may be mentioned that the law of diminishing marginal rate of substitution cause an indifference curve to be convex to the origin. This is the most common shape of an indifference curve. But in case of goods being perfect substitutes, the marginal rate of substitution does not diminish. It remains the same. Let's take an example. Representation of law of diminishing marginal rate of substitute. Quantity of 5 rupees notes and quantity of rupees coins. Here the consumer is indifferent for all these combinations as long as the total of 5 rupees coins and 5 rupees notes remains the same. For the consumer, it hardly matters whether she gets a 5 rupees coin or a 5 rupees note. कंज्यूमर को इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास 5 रुपए का नोट है या 5 रुपए का सिक्का है. So irrespective of how many 5 rupees notes she have, the consumer will sacrifice only one 5 rupee coin for a 5 rupee note. So these two commodities are perfect substitutes for the consumer, and indifference curve depicting these will be a straight line. ये दोनों coin और रुपी का नोट एक दूसरे के substitute हैं. In the figure 2.4, it can be seen that consumer sacrifices the same number of 5 rupees coin each time he has an additional 5 rupees note. We can see figure number 2.4. There is a straight curved line. Curve for perfect substitution. Indifference curve depicting two commodities which are perfect substitutes is a straight line. Monotonic preferences. Consumers' preferences are assumed to be such that between any two bundles x1, x2 and y1, y2, if x1, x2 has more of at least one of the good and no less of the other good compared to y1, y2, then the consumer prefers x1, x2 to y1, y2. Preferences of this kind are called monotonic preferences. Thus, a consumer preference are monotonic if and only if between any two bundles, the consumer prefers the bundle which has more at least one of the good and no less of the other good as compared to the other bundle. Indifferent map. In figure 2.5, we can see indifferent map. A family of indifference curved. The arrow indicates that bundles on higher indifference curves are perfectly by the consumer to the bundle of lower indifference curves. We will start. The consumer's preferences over all the bundle can be represented by a family of indifference curve as shown in figure 2.5. जैसे कि हम 2.5 फिगर में देख सकते हैं. This is called an indifferent map of the consumer. All points on an indifferent curve represent bundles which are considered indifferent by the consumer. Monotonicity of preference imply that between any two indifference curve, the bundle on the one which lies above are preferred to the bundle on the one which lie below. Features of indifference curve. Indifference curve slope downward from left to right. Left से लेके right तक उसका sloping downward होता है. And indifferent curve slopes downward from left to right, which means that in order to have more of bananas, द कंज्यूमर हैज़ टू फोरगो सम मैंगोज. तो उसको कुछ बनानास को फोरगो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. इफ द कंज्यूमर डज नॉट फोरगो सम मैंगो विद एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बनाना. अगर कंज्यूमर मैंगोज को नहीं छोड़ता है और अपने बनाना की नंबरिंग को इंक्रीज करना चाहता है, इट विल मीन कंज्यूमर हैविंग मोर ऑफ बनानास विथ सेम नंबर ऑफ मैंगोज टेकिंग हर टू बी अ हायर इंडिफरेंट कर्व. तो उसका क्या होता है, हायर इंडिफरेंट कर्व होता है. Thus, as long as the consumer is on the same indifferent curve, an increase in bananas must be compensated by a fall in quantity of mangoes. तो उसको मैंगोज की जो क्वांटिटी डाउन होती है उसको इंडिफरेंट कर्व कहते हैं. और इसमें क्या होता है, बनानास की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है. हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी. अगर आपका इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पर होगा
तो आपकी यूटिलिटी ग्रेटर लेवल पर होगी। एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज पॉजिटिव एंड इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ दैट कमोडिटी, as more of the commodity will increase the level of satisfaction। जैसे जैसे कमोडिटी का लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। टेबल नंबर 2.4 से देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है और हमारा यूटिलिटीज का लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट है। Combination A, quantity of bananas and quantities of mangoes. Consider the different combination of bananas and mangoes A, B and C depicted in table 2.4 and figure 2.7. Table is 2.4 and figure is 2.7. Combination A, B and C consist of same quantity of mangoes. Mangoes की quantity same है, no difference of in mangoes quantity, but different quantities of bananas. पर जो बनानास की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट है वो। सिंस कॉम्बिनेशन बी हैज मोर बनानास देन ए, बी के पास ए से ज़्यादा बनाना है, बी विल प्रोवाइड द इंडिविजुअल अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन ए, बी को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ए के कंपैरिजन में। देयरफॉर बी विल लाई ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व देन ए, बी कहाँ लाई करता है, हायर डिफरेंस लेवल पे, इंडिफरेंस लेवल पे बिलोंग करता है। A depicting higher satisfaction, likewise C has more bananas like than B. C के पास B से भी ज़्यादा bananas हैं। Quantity of mangoes is the same in both B and C, but mangoes की quantity same है B and C में। Therefore, C will provide higher level of satisfaction than B. C और भी ज़्यादा satisfaction दे रहा है B के comparison में, and also lie on a higher indifference curve than B. B से ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व है। ए हायर इंडिफरेंस कर्व consisting of combination with more of mangoes and or more of bananas or more of both will represent combination that give higher level of satisfaction। इसमें वो कॉम्बिनेशन दिखाया गया जिससे हमें हायर लेवल पर सेटिस्फेक्शन मिलती है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो दो है इंडिफरेंस कर्व वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर विल लीड टू कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स। तो उनका रिजल्ट कैसा होता है, कन्फ्लिक्टिंग वाला आता है, जो आप बीच में देख सकते हो A7 to 10। टू एक्सप्लेन दिस लेट अस अलाउ टू इंडिफरेंस कर्व टू इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन इन फिगर 2.8। as point A and B lie on the same indifferent curve. A and B lie on the same indifferent curve IC1. Utilities derived from combination A and combination B will give the same level of satisfaction. A and B will give the same level of satisfaction. Similarly, as points A and C lie on same indifferent curve IC2. Utilities derived from combination A and C will give the same level of satisfaction। जो उनको दोनों को B और C ये same level of satisfaction दे रहे हैं। From this, it follows that utility from point B and from point C will also be the same। Point B और C दोनों same हैं, but this is clear and observed result as on point B, the consumer gets a greater number of mangoes with the same quantity of bananas। कंज्यूमर के पास क्या है, ज़्यादा मैंगोज हैं और बनानास की क्वांटिटी सेम है। सो कंज्यूमर इज बेटर ऑफ अ पॉइंट देन बी देन एट पॉइंट सी। दस इट इज क्लियर दैट इंटरसेक्टिंग इंडिफरेंस कर्व विल लीड टू कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट, जो कि है इसका रिजल्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग वाला हो जाता है, झगड़े वाला हो जाता है। Thus, two indifferent curve cannot intersect each other। Two indifferent curve एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते। Next one is 2.2, the consumer's budget। Let us consider a consumer who has only a fixed amount of money to spend on two goods। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर है, उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है टू गुड्स के ऊपर देने के लिए। द प्राइस ऑफ द गुड्स आर गिवन इन द मार्केट।
हमारी मार्केट में गुड्स का प्राइस दिया गया है। द कंज्यूमर कैनॉट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कंज्यूमर नहीं बाय कर सकता एवरी कॉम्बिनेशन टू गुड्स का दैट शी मे वांट टू कंज्यूम, जो वो कंज्यूम करना चाहती है। द कंजप्शन बंडल देयर आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द टू गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो किसी चीज़ का कंजप्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ कंज्यूम जो गुड्स का प्राइस है उस पर, और सेकंड वन कंज्यूमर की इनकम पर। गिवन हर फिक्स्ड इनकम एंड द प्राइस ऑफ टू गुड्स, द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स which cost her less than or equal to her income। जो आपका कंज्यूमर है वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है जिन दो चीज़ों की कॉस्ट या तो कम हो या फिर उसकी इनकम के इक्वल हो। उन्हीं दो चीज़ों को वो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि आप सबसे पहले अपनी पॉकेट देखोगे और ये देखोगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ कम से कम प्राइस में मिल जाए। बजट सेट एंड बजट लाइन। सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एम। हम सपोज करते हैं जो कंज्यूमर हम लेकर चल रहे हैं उसकी इनकम एम है एंड द प्राइस ऑफ बनानास एंड मैंगोज आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। बनाना को हम P1 से डिनोट करेंगे और मैंगो को P2 से। इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय X1 क्वांटिटीज ऑफ बनाना, अगर कंज्यूमर X1 क्वांटिटी बनाना की लेना चाहता है, शी विल हैव टू स्पेंड P1 X1 अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको बनाना खरीदने के लिए P1 X1 मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। ऐसे ही इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय X2 क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज, अगर कंज्यूमर X2 क्वांटिटी ऑफ मैंगोज की खरीदना चाहता है, शी विल हैव टू स्पेंड P2 X2 अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको P2 X2 मनी स्पेंड करनी होगी मैंगोज खरीदने के लिए। Therefore, if the consumer want to buy the bundle consisting of X1 quantities of bananas and X2 quantities of mango, she will have to spend P1 X1 plus P2 X2 amount of money। तो उसको अपनी मनी का P1 X1 plus P2 X2 स्पेंड करना पड़ेगा अगर वो दोनों चीज़ें ही खरीदना चाहता है, बनाना भी और मैंगो भी। She can buy this bundle only if she has to at least P1 X1 plus P2 X2 अमाउंट ऑफ मनी, उसको इतनी मनी तो एटलीस्ट देनी ही पड़ेगी। गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, शी कैन चूज एनी बंडल एज लॉन्ग एज इट कोस्ट्स लेस देन और इक्वल टू इज द इनकम शी हैज़। जो उसके पास इनकम है उसमें उसके अकॉर्डिंग उसको, या फिर उसकी चीज़ की कीमत कम हो, उसके अकॉर्डिंग उसको थिंग्स को चूज करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द कंज्यूमर कैन बाय एनी बंडल X1 और X2, कंज्यूमर कोई भी बंडल खरीद सकता है सच एज P1 X1 प्लस P2 X2 ग्रेटर देन M। द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट। इस इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं? बजट कॉन्स्ट्रेंट। द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड द बजट। The set of bundles available to the consumer is called the budget set. The budget set is the collections of all bundles that the consumer can buy with her income at prevailing market price. Consumer क्या करता है? जो market price होता है उस टाइम पे उसी से वो खरीद सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2.1। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर हु हैज़ ₹20। एक कंज्यूमर है जिसके पास 20 रुपये हैं एंड सपोज बोथ द गुड्स आर प्राइस एट ₹5। हर चीज़ का प्राइस, टू चीज़ों का प्राइस क्या है? ₹5 है। आर अवेलेबल ओनली इन इंटीग्रल यूनिट्स। द बंडल्स दैट दिस कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय आर। तो वो कैसे बंडल्स खरीद सकता है? 0 नो स्पेंड ऑफ मनी, 0 1 मीन्स ₹5, 0 बनानाज एंड 1 मैंगोज, 0 2 0 बनानाज 2 मैंगोज ₹10, 0 3 0 bananas 3 mangoes ₹15, 0 bananas 4 mangoes ₹20, 1 banana 0 mangoes ₹5, 1 banana 1 mango ₹10, 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 and 4 0. Among these bundles 0 4 1 3 2 2 3 1 and 4 0 cost exactly ₹20। इन सब की एग्जैक्टली कॉस्ट क्या बनती है? ₹20 बनती है।
और वो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। एंड ऑल द अदर बंडल्स कोस्ट लेस देन ₹20 और कुछ की क्या बनती है जो ऊपर आपको दिए गए हैं उनकी कुछ की तो कोस्ट ₹20 से कम बनती है। द कंज्यूमर कैनॉट अफोर्ड टू बाय बंडल्स लाइक 3-3। कंज्यूमर्स 3-3 के बंडल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता एंड 4-5 के बंडल को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम 3-3 को देखें तो 3-3 जा 3-3 6 6-5 जा ₹30 एंड 4-5 को देखें तो 9-5 जा ₹45 बट कंज्यूमर हैव ओनली ₹20 बिकॉज तो वो इन 3-3 और 4-5 के बंडल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज दे कोस्ट मोर देन ₹20 एट प्रिवेलिंग प्राइस, क्योंकि उनकी कोस्ट ₹20 है जो कि प्रिवेलिंग प्राइस है। प्राइस ऑफ अ गुड इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंज्यूमर हैज टू पे पर यूनिट ऑफ द गुड शी वांट टू बाय। प्राइस वो होता है जो कंज्यूमर को देना होता है किसी भी चीज को खरीदने के लिए। इफ रुपी इज द यूनिट ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड इज measured in kilogram, the price of banana being P1 means the consumer has to pay P1 रुपीस पर किलो ऑफ बनाना दैट शी वांट टू बाय। अगर उसको पर किलो ऑफ बनाना खरीदना है तो उसको P1 मनी स्पेंड करनी पड़ेगी बनाना खरीदने के लिए। इफ बोथ द गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल, अगर दोनों ही चीजें परफेक्टली डिविजिबल हैं, द कंज्यूमर्स बजट सेट वुड कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स x1 x2 सच एज that x1 and x2 are any numbers greater than or equal to 0 and p1 x1 plus p2 x2 and the budget can set be represented in a diagram as in figure। आपको फिगर में दिया गया है फिगर नंबर 2.9। All bundles in the positive quadrant which are on or below the line are included in the budget set. The equation of the line is P1x1 plus P2x2 is equal to M. The line consists of all bundles which cost exactly equal to M. इनकी सबकी कोस्ट किसके इक्वल है? M के इक्वल है। This line is called the budget line. इस लाइन को हम बोलते हैं बजट लाइन, जो आपको शो हो रही है फिगर नंबर 2.9 में। पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन रिप्रेजेंट्स बंडल विच कोस्ट स्ट्रिक्टली लेस देन m, जिनकी कोस्ट स्ट्रिक्टली m से लेस देन है। द इक्वेशन 2.2 also can be written as x2 is equal to m by p2 minus p1 by p2 x1। The budget line is a straight line with horizontal intercept. बजट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में m by p1 एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है? m by p2। The horizontal intercept represents the bundle that the consumer can buy if she spends her entire income of banana। कंज्यूमर कब खरीद सकता है? जब वो सारी की सारी अपनी इनकम बनाना पर स्पेंड कर दे। Similarly, the vertical intercepts represents the bundle that the consumer can buy if she spends her entire income of mango। जब वो अपनी सारी की सारी इनकम बनाना पर मैंगोज पर खर्च कर दे तो कौन सा इंटरसेप्ट बनेगा? वर्टिकल इंटरसेप्ट। और जब सारी की सारी इनकम बनाना पर खर्च कर दे तो कौन सा इंटरसेप्ट बनेगा? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज माइनस P1 by P2। नेक्स्ट वन इज price ratio and the slope of the budget line। Think of any point on the budget line। हम budget line में और भी points को देखते हैं, सोचते हैं। Such a point represents a bundle which costs the consumer her entire budget। Now suppose the consumer want to have one more banana। She can do it only if she gives up some amount of the other good। अगर कंज्यूमर को एक और बनाना खरीदना है तो उसको दूसरी गुड्स को छोड़ना पड़ेगा। हाउ मैनी मैंगोज डज शी हैव टू गिव अप? उसको कितने मैंगोज छोड़ने पड़ेंगे? इफ शी वॉन्ट्स टू हैव एन एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ बनाना, अगर उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ बनाना की चाहिए तो इट वुड डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ टू गुड्स। यह टू गुड्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अ क्वालिटी ऑफ बनाना कोस्ट P, क्वांटिटी ऑफ बनानास कोस्ट P। बनाना की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? P1। Therefore she will have to reduce her expenditure on mangoes by P1 amount। उसको कुछ एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने पड़ेंगे मैंगोज पर। इफ शी वॉन्ट्स
वन मोर क्वांटिटी ऑफ बनाना, अगर उसे एक और क्वांटिटी चाहिए बनाना की, with P1 she could buy P1 by P2 quantities of mangoes. Therefore, if the consumer wants to have an extra quantity of bananas when she is spending all her money, अगर उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी चाहिए बनाना की और अपनी वो सारी की सारी मनी वो उस पर खर्च कर रही है, शी विल हैव टू गिव अप P1 by P2 क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, तो उसको अपने मैंगोज की P1 by P2 क्वांटिटी गिव अप करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी. In other words, in the given market conditions, the consumers can substitute bananas for mangoes at the rate. तो अब इस कंडीशन में क्या है, बनाना किसका सब्सटीट्यूट है, मैंगो का, P1 by P2. The absolute value of the slope of the budget line measures the rate at which the consumer is able to substitute bananas for mangoes when she spend her entire budget. The derivation of the slope of the budget line, हम ये देख रहे हैं फिगर में, bananas and mangoes, O point. The slope of the budget line measures the amount of change in mangoes required per unit of mangoes in bananas along the budget line. budget line के थ्रू में सारा देख रहे हैं. Next one is thank you for today. I think आपने enjoy किया और इसको समझिए और पढ़िए. गुड नाइट, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय.